देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में यूपी सीएम का धुआंधार स्टार प्रचार। प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं से सड़क गलियां प्रयागराज में कोना कोना भरा। अयोध्या में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, चंपत राय ने लोगों से की अपील, 15 से 20 दिन बाद दर्शन के लिए आए। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी। बागपत में वॉच टावर टूटने से बड़ा हादसा, हादसे में 7 लोगों की मौत। हमीरपुर में घर में घुसकर युवती के साथ बर्बरता, युवती को बंधक बनाकर कटे सिर के बाल, ब्लेड से दोनों हाथों की काटी कलाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां पर महाराणा प्रताप स्टेडियम में रेखा आर्या क्या कुछ कह रही, सुन लेते हैं। रक्षा काटे जी, Honorable Minister of State for Ministry of Road Transport and Highways, Sri Ajay Dante ji, Honorable Minister for Sports, Government of Uttarakhand, Rekha Arya ji, dignitaries, athletes, officials, and guests, ladies and gentlemen, Namaskar. It is with immense pride and joy that I stand before you today at the opening ceremony of the 38th National Games here in serene and majestic state of Uttarakhand. It is indeed momentous occasion, made even more special by the presence of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, whose vision and unwavering commitment to sports have ignited a new era of excellence in Indian sports. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Sri Pushkar Singh Dhami ji, for his government's dedicated efforts in bringing these games to life in this land of natural beauty and vibrant culture. To host such a prestigious event is no small task, and the state has risen magnificently to the occasion. A warm welcome to Mr. Cherish Jenkins, President of the Commonwealth Games Federation. Your presence here today underscores the global importance of platforms like the National Games in nurturing talent and promoting the spirit of the sportsmanship. To the Honorable Minister of Sports, Government of Uttarakhand, Rekha Arya ji, I extend my deep appreciation for your tireless support in strengthening Uttarakhand's sporting ecosystem. Your initiatives have provided a solid foundation for athletes to dream big and achieve their goals. The National Games is more than a competition. It is a celebration of our shared heritage, unity, and diversity. It is here that champions are forged, friendships are built, and spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat truly come alive. Over the next several days, we will witness not just record being broken, but also the incredible passion and perseverance of athletes from every corner of our nation. Athletes, this is your moment. The eyes of the nations are upon you, and we are here to cheer for your success. Remember, whether you stand on the podium or not, your dedication, discipline, and determination inspire millions of young Indians
अब रुक करते हैं यूपी की खबरों का। गाजियाबाद से खबर है, क्राइम पुलिस को लगी बड़ी सफलता। हाथ अलग अलग राज्यों में शराब तस्करी करने वाले गिरफ्तार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में तस्करी। आरोपी सुदामा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के अलग अलग राज्यों में शराब तस्करी करने वाले गिरफ्तार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार में तस्करी। आरोपी सुदामा तस्कर को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक अवैध अंग्रेजी शराब की तस्कर करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी नंदगांव थाना क्षेत्र से की गई है, जिसके कब्जे से 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है, जिसमें कुल 720 बोतल थी तथा जो घटना में प्रयुक्त कैंटर गाड़ी थी वो भी बरामद हुआ है। ये लोग कैंटर गाड़ी में बेसमेंट में जो अवैध अंग्रेजी शराब छुपा देते थे, ऊपर से जो खाद की बोरी हो गई, चाहे प्लास्टिक के दाने हो गए या नमक की बोरी रख के छुपा के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से जो है तस्करी करके गुजरात और बिहार जहाँ पे शराब बैन है वहाँ सप्लाई किया करते थे। हमीरपुर से खबर है, घर में घुसकर युवती के साथ की बर्बरता। दबंगों ने देर रात घर में घुसकर युवती से की बर्बरता। दबंगों ने युवती को बंधक बनाकर काटे सिर के बाल। युवती के हाथ पैर बांध ब्लेड से दोनों हाथों की काटी कलाई। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किया घटना को अंजाम। दबंगों ने युवती को बंधक बनाकर काटे सिर के बाल। क्या घटना हुई है? मेरे यहाँ जब मेरी बिटिया दरवाजे में लात मार रही थी, दो पैर बंधे थे तो ऐसे मार रही थी, वो कर रही थी। तब मेरी आंखें खुली था, मको बेटी यहाँ बहुत आगे हैं, डराना नहीं तो या यो को कर रहे कहूँ इसकी नहीं। तब मैंने बैठने करके देखी था, पूरी हाथ गरे पूरा बंधी थी, पैर भी बंधे थे, हाथ भी बंधे थे, ऐसे गर्दन पूरी बंधी थी। फिर मैं आके छुटाने लगी, ना मैं इसके बुलाया ना कोई बुलाया, मैंने नहीं छुटाया लगा। तब छोटी वाली मेरी बिटिया है नहीं बड़ी, वो आ गई छुटाने के लिए, तो वो पैर में चिपट पड़ी था, तो हमने छोड़ा नहीं है। मैं तो दवा खा के सो रहा था हाथ की वजह से। उसके बाद मैंने नींद में दवा में हो गया, कोई मैं जान नहीं पाया हूँ। लड़की हमारी दरवाजे के पास पैर हाथ पन्नी मुंह बंद कटी फकी मिली। हम जब सबसे जड़ पे पहुंचे पाया हूँ, उठने के बाद में इधर नदी में फंसा था तो मैं चाकू से काटा है। उधर एक चाकू, कई ब्लेड पड़े मिले हैं। वहाँ गाँव लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। यहाँ बोलते बना कर तुम केस किया है, ऐसा बोल रहे हैं। 8 दिन पहले ये लोग धमकी दे के गए थे, फिर मैं तो देखा नहीं, ऐसा बोलता नहीं हूँ। मेरे यहाँ रात को आते पीछे बात करते, आके फोन से कहते हैं कि चारों लोगों को मार के फेंक दो। मैं अपने मम्मी पापा को जगाती हूँ, कोई नहीं जागता, मुंह से नहीं जगाती हूँ, हाथ पैर से जागता नहीं है कोई। तो मैं बकरी में निकल के आ जाती, नत्थू कूद के आ जाता, मेरा मुंह दबोच लेता है। इसी समय पकड़ के मेरा मुंह में वो ठूस देता है, पन्नी ठूस के मुंह बांध देता है, ब्लेड मारता है, मेरे बाल छीलता है। कौन है वो? नत्थू, और मनोज। कौन था? कोई साथ में था? अकेले था? मनोज। किस वजह से इस वारदात करने? मेरे यहाँ भोज था बहुत पहले, 8 दिन हो गया। मेरे भाई को मार रहे थे, मेरे बड़े पापा का लड़का है, उसी को मार रहे थे। मैं बोली क्यों मार रहे हो, तो नत्थू का लड़का मेरा गर्दन पकड़ लिया, मैंने हटा दिया, लात मार दिया और अपने भाई को लेकर आ गए, तो मेरे दरवाजे में डंडा ठोकने लगा करके। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधा आपको देहरादून ले चलते हैं, यहाँ पे आज राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराणा प्रताप स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाई बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक कूटनीति एवं प्रबंधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाई बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए
और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे आपको देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में लेकर चलते हैं। खेल सिर्फ शारीरिक प्रतिस्पर्धा नहीं होते, बल्कि यह समाज और देश के लिए एक साझा उत्सव होते हैं जो हमें जोड़ते हैं। तो आइए पूरे उत्साह के साथ हम मौली का स्वागत करते हैं, जो इस महाकुंभ के साथ अपने कदम से हर दिन को छूने के लिए आ रहा है। और अब हमारे साथ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का बैक फाइटर बैंड, जो इस ऐतिहासिक अवसर पर खिलाड़ियों के काफिले के साथ मार्च कर रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कुमाऊं की पर्वतीय पहाड़ियों के किनारे स्थित है, देश भर में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। इस स्कूल, जिसके प्रिंसिपल हैं ग्रुप कैप्टन विजय सिंह धनवाल जी, ने अब तक देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में सबसे अधिक कैडेट्स को भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही यह स्कूल अब तक रक्षा मंत्री ट्रॉफी को 9 बार अपने नाम कर चुका है, जो इसकी उत्कृष्टता और समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं हमारे बैंड कैप्टन कैडेट प्रियांशु पांडे। यह बैंड पूरी तरह से 30 संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कुछ महिला कैडेट्स भी शामिल हैं। इनकी धुनें न केवल हमारे राष्ट्र प्रेम को जागृत करती हैं, बल्कि साथ ही नई ऊर्जा और जोश का संचार भी करती हैं। इस बैंड के गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भी 2020 में उन्होंने मार्च किया है। साथ के साथ अब आप देख रहे हैं इस परेड में हमारे देश के सभी राज्यों के एथलीट्स को। राष्ट्रीय खेलों में देश भर से तकरीबन 10,000 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं और उनकी यह प्रतिस्पर्धा उनके लिए और ऊंचे मुकाम को साधेगी। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार के खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, फिर बिहार और उसके बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को। छत्तीसगढ़ के बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को। छत्तीसगढ़ के बाद आपके सामने से गुजर रहे हैं दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एथलीट्स। अब आप देख रहे हैं दिल्ली के एथलीट्स को। रुक करते खबरों का ललितपुर से खबर है। महिला उत्पीड़न को रोकने का कानून बेअसर, जिले में भ्रूण हत्या रोकने का कानून बेअसर दिख रहा है। भ्रूण हत्या के लिए ससुराल वालों पर दबाव बनाने का आरोप। जिले में भ्रूण हत्या रोकने का कानून बेअसर दिख रहा है। भ्रूण हत्या रोकने का कानून बेअसर, महिला मानसिक उत्पीड़न एवं मारपीट से परेशान। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला, ललितपुर से खबर। महिला उत्पीड़न रोकने के कानून बेअसर।
भ्रूण हत्या के लिए ससुराल वालों पर दबाव बनाने का आरोप। बुलंदशहर से खबर, प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ करने का आरोप। सिविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला, छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। कक्षा 8 की छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर लगाया संगीन आरोप। हापुड़ से खबर है, मामूली विवाद में गुंडों ने युवक को बेरहमी से पीटा। मां के साथ दवाई लेने आए युवक के साथ गुंडों ने की मारपीट। करीब आधा दर्जन गुंडों ने युवक पर बरसाए लात घूंसे। मारपीट के दौरान युवक घायल, वीडियो हुआ वायरल। मेरठ से खबर है, पशुओं की हत्या कर मांस सप्लाई करने का खेल। हत्या के बाद मांस सप्लाई करने वाला आरोपी सिकंदर अरेस्ट। जहर खुरानी गिरोह पशुओं को चारों में जहर देकर मारता था। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में सप्लाई होता था मांस। दिल्ली जामा मस्जिद के पास कई होटलों में सप्लाई का खेल। 250 रुपये किलो वाला मांस 50 रुपये किलो बेचा करते थे आरोपी। ग्रामीण इलाकों में घरों में चारे में सल्फास देकर मारते थे पशु। पुलिस और शहर की SWAT टीम द्वारा एक गुड वर्क किया गया, जिसमें एक जहर खुरानी गिरोह को पकड़ा है पुलिस द्वारा। इसमें टोटल अभी 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति मुकेश शाक्य और अथर कुरैशी, इन्हें पुलिस मुठभेड़ में आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। और इनकी निशानदेही पे 3 और जो है सिकंदर उर्फ भुट्टन, वसीम उर्फ MP और ध्रुव जाटव पुत्र डालचंद, इन सभी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये लोग जहर खुरानी का काम करते हैं। इसमें से जो सिकंदर उर्फ भुट्टन है, इसके नाम पे नगर निगम की तरफ से एक ठेका छूटा हुआ है मृत पशुओं को ले जाने का। ये लोग जो सल्फास होता है, इसको घास में धनिया की पत्ती में लगा के बांध के ये पशुओं के चारे में डाल दिया करते थे। जब पशु उसे खा के मर जाता था, मृत हो जाता था, उसके बाद ये लोग, इसमें से एक व्यक्ति आता था और पशु को लेके जाता था। पशुओं का उसके बाद जो खाल है, इसके जो हड्डी वगैरह है। पीलीभीत से खबर, अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन का ध्वस्तीकरण। आधा दर्जन कॉलोनियों को सिटी मजिस्ट्रेट SDM ने गिरवाया। DM के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन की कार्रवाई। विनियमित क्षेत्र में 15 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया। सभी पर की जाएगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। DM के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट विनियमित क्षेत्र में 15 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया। सभी पर की जाएगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक।